Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at AppSec online support program. Chapter number 2, Atomic Structure, lecture number 6. In today's lecture students, the topics are derivation of radius of orbit, derivation of energy of orbit, derivation of frequency of orbit, and derivation of wave number of orbit. Let's start from the first one, that is the derivation of radius of orbit of an atom. Students, if you remember in our last lecture, I discussed with you the Bohr atomic model and then we studied about the postulates of the Bohr theory. In today's lecture, we will see the derivation of the radius which was given by the Bohr. Bohr derived the expression for the calculation of the radius of an orbit of an atom of hydrogen and other ions like helium, lithium, etc. Helium is in positive 1 form and lithium in plus 2 form. Students, if you observe, if you focus here, you may see that if you talk about the helium plus 1 ion, you know very well that helium atom containing 2 electrons and plus 1 mean that now in this state helium containing only 1 electron. Okay, and if you talk about the lithium plus 2, and we know very well that the total number of electrons in lithium, or you can say that atomic number of lithium is 3. And in this state, when it is in the form of plus 2 ion, it's mean that now in this state, it containing only 1 electron. So, and hydrogen always containing only 1 electron. So, we can say Bohr derived the expression only for those atoms which containing only 1 electron, or you can say that those atoms which are univalent, जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है, ठीक है, नॉट मोर देन 1. अगर हाइड्रोजन है उसमें भी हमारे पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. इन हीलियम इन प्लस 1, हीलियम अगर इस प्लस 1 की स्टेट में है तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और लिथियम अगर प्लस 2 आयन की स्टेट में है तो 1 इलेक्ट्रॉन. तो हमारे पास जो बोहर का रेडियस है ये सिर्फ उन एटम्स के लिए है जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा. ओके, now let us consider an atom having the two forces, centripetal force and centrifugal force. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस डायग्राम में आपको न्यूक्लियस शो किया गया है और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन शो किया गया है जो कि रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में, और ये जो ब्लू डॉटेड लाइन आपको शो की गई है दैट इज़ द ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. ओके, नाउ व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स? दैट इज़ एक्चुअली द फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस and the outermost electron. Okay, that is a force of attraction between the nucleus and outermost electron, which is known as centripetal force. Second force is the centrifugal force. What is centrifugal force? That is actually the force which keep the electron distant from the nucleus. Okay, आप देख सकते हैं अगर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन के बावजूद ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को टच नहीं कर रहा होता. टच क्यों नहीं कर रहा होता? क्योंकि यहाँ पर एक और फोर्स होती है जो कि इसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर रखे हुए होती है, जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, तो अगर हमारे पास कोई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो एट अ टाइम दो फोर्सेस होती हैं. एक वो फोर्स होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर जाने नहीं देती है, उसको न्यूक्लियस ही के गिर्द घुमाने पर कंपेल्ड करती है, उसको मजबूर रखती है, ठीक है. बट एट अ टाइम अट्रैक्शन होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को टच नहीं कर रहा होता. क्यों नहीं टच कर रहा होता? कि वहाँ पर उसी वक्त हमारे पास साइमल्टेनियसली एक और फोर्स होती है दैट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच कीप द इलेक्ट्रॉन डिस्टेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस. होपफुली स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये दोनों फोर्सेस समझ आ गई होंगी. नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Okay, centripetal force, which is also known as a Coulomb force or electrostatic force, that is actually the force of attraction between nucleus and electron, and would be, ये इसकी mathematical form है ZE square over 4 pi E naught and R square. Second force is the centrifugal force, as I told you in last slide, the force which keeps electron away from the nucleus, and the mathematical value is mv square over R, where m is actually the mass of electron, v is the velocity of electron, r is the radius of orbit, e is the charge of electron, ze is the charge on the nucleus. Okay, and E naught, or you can say epsilon naught, that is actually the vacuum permittivity.
वैक्यूम परमिटिविटी वो एरिया होता है जहाँ पर हम किसी भी एटम को ले जाके और वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करने के बाद हम वहाँ पे उसका रेडियस, एनर्जी या कोई भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ताकि कोई और फोर्स उस पर एक्ट ना कर रही हो. दैट इज़ द वैक्यूम परमिटिविटी. ओके, नाउ derivation of the Bohr. Bohr assumed that to keep electron in its orbit, these two forces are equal, opposite and balance each other. Obviously students, आपको ये बात वहीं पे समझ आ गई होगी कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो ये इसी सूरत में हो सकता है when the centrifugal force is equal to the centripetal force. These both forces should be equal, opposite and balance form. So we can say that the centripetal force is equal to the centrifugal force by keeping the value of both forces mv square over r and z e square over 4 pi e naught and r square. और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ जाती है. और आप देख सकते हैं कैसे सिंप्लीफाई किया गया है इसको, कि यहाँ पर r स्क्वायर इस r से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास और करके ये वैल्यू आ जाएगी. ओके, नाउ एज वी हैव टू वर्क ऑन द रेडियस, तो इसलिए हमने जब r रिक्वायर्ड है तो इसलिए हमने r की वैल्यू को यहीं पे रखी है, बाकी तमाम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर दिया. तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू आ गई है वो ये आ गई है, जिसमें r इज़ इक्वल टू जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द बोहर पॉस्टुलेट, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम आपको बताया गया था एम वी आर इज़ इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई. इफ़ यू रिमेंबर दैट वाज एक्चुअली द लास्ट पॉस्टुलेट ऑफ द बोहर, और जिसमें उसने बताया था एंगुलर मोमेंटम के बारे में कि हमारे पास जो ऑर्बिट होता है एक्चुअली वो होता है जिसकी वैल्यू, जिसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल हो. ओके, अगर आपको याद नहीं है तो आप देख लीजिएगा, लास्ट वाली हमारी जो वीडियो थे उसमें मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में. ओके, तो अब देखें आप, बोहर पॉस्टुलेट की वैल्यू हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो लास्ट हमारे पास पॉस्टुलेट था उसकी वैल्यू एम वी आर एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई. अगर हमें v रिक्वायर्ड है तो v की वैल्यू अगर हम यहीं पे रखें और बाकी एम वी आर हमारे पास यहाँ 2 पाई एम आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, नाउ बाय टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमारे पास जो ये वेलोसिटी की वैल्यू है हमने तमाम जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है इसको हमने स्क्वायर कर दिया. तो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो ये आ गई है. अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स इसको स्क्वायर क्यों किया है. स्क्वायर इसलिए किया है कि यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन नंबर 1 में जो v की वैल्यू है वो स्क्वायर फॉर्म में है. ठीक है, इस वजह से हमने इसको स्क्वायर किया है ताकि हम इस तमाम वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकें. ठीक है, अभी आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, बाय पुटिंग द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट. आप देख लीजिए इस तमाम वैल्यू को आपने यहाँ पर v स्क्वायर की जगह पे पुट करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. आपके पास N2H2, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो N2H2 आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड आपके पास 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एंड आर स्क्वायर जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा. ठीक है, और ये आपके पास मल्टीप्लाई का बीच में साइन आ जाता है जो कि जिसको डॉट से शो किया गया है. ठीक है, नाउ और हम इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सिंप्लीफाई आपके पास जो सेम स्पीशी है वो कैंसिल हो जाएगी. अब ज़रा मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि कैसे कैंसिल होगी. ये आर आपके पास इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, आपके पास जो m है वो यहाँ m स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और आपके पास यहाँ पर जो पाई है वो यहाँ पाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो अब हमारे पास ऊपर क्या क्या रह गया है, जेड स्क्वायर 1 पाई, अच्छा 4 से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास ऊपर क्या कुछ रह गया है, ये जेड स्क्वायर रह गया. यहाँ पर जो एक पाई हमारे पास रह गया था वो हमारे पास नीचे आ जाएगा, एक m रह गया था वो यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, आर स्क्वायर में से एक r तो हमारे पास इस r से कैंसिल हो गया था, इसलिए हमारे पास यहाँ एक r रह गया था जो हमने यहाँ पे लिख लिया. सेम नीचे हमारे पास क्या कुछ रह जाएगा, यहाँ हमारे पास नीचे लेट मी शो यू अगेन, यहाँ पर हमारे पास क्या कुछ रह गया, 4 और पाई ये दोनों कैंसिल हो गए थे. एप्सिलॉन नॉट हमारे पास सिर्फ रह गया है क्योंकि m भी हमारे पास कैंसिल हो गया था. सिर्फ एप्सिलॉन नॉट रह गया है. यहाँ हमारे पास N2 एंड H2 रह गया है. इस वैल्यू को हमारे पास इस तरह से आ जाएगी. ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके हमारे पास एप्सिलॉन नॉट वाली वैल्यू को हमने यहाँ करके इक्वल टू के साइन में लिया है. अब हमें क्योंकि सिर्फ r से कंसर्न है, हमें रेडियस से कंसर्न है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा,
एप्सिलॉन नॉट N2H2, और ये जो हमारे पास सारी वैल्यूज आ रही है, लेट मी शो यू, जेड स्क्वायर पाई और एम की वैल्यू, आर नहीं लिखना है, आर के अलावा एम, ठीक है, ये सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ नीचे आ जाएगी। और क्योंकि हमें कैलकुलेट तो आर करना है, रेडियस करना है, इसलिए आर की वैल्यू हमने यहाँ इस तरह से स्टूडेंट्स हमने नहीं बल्कि बॉहर ने बॉहर ने इस तरह से रेडियस कैलकुलेट कर लिया था ऑर्बिट का, और ऐसे एटम का जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, 1। सो वी कैन से फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1। तो अगर 1 हमारे पास होगा तो हमारे पास ये जो Z की वैल्यू है ये भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास वैल्यू ये रह जाएगी। अब हमारे पास स्टूडेंट्स इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को हमने यहाँ रख लिया, सिर्फ हमारे पास जो n है दैट इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, दैट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल को हमने अलग कर लिया और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको हमने एक साइड पे कर दिया। तो इन कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमने एक ही कांस्टेंट वैल्यू लिख दी है, दैट इज़ द ए नॉट, स्मॉल ए नॉट, जो कि यहाँ पे आपको शो किया गया है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कि तमाम कांस्टेंट की जगह पर हमने एक कांस्टेंट लिख लिया है, दैट इज़ द स्मॉल ए नॉट। और बाकी हमारे पास क्योंकि n स्क्वायर हमने वैसे ही रहने दिया है, क्योंकि हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो हमारे पास n1 होगा, अगर सेकेंड ऑर्बिट होगा तो हमारे पास n2 होगा। तो इस तरह से हमारे पास चेंज होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने रेडियस कैलकुलेट कर दिया। a इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी हैविंग अ वैल्यू ऑफ द 0.529, कांस्टेंट क्वांटिटी से हमने कैलकुलेट की, तो हमारे पास आ गई 0.529 एक्सपोनेंट -10 मीटर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पर जो कांस्टेंट है ए नॉट है, तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू आ गई है दैट इज़ अ 0.529 एक्सपोनेंट -10 मीटर। और अगर हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंट -10 मीटर की जगह हम एंगस्ट्रॉम एक और यूनिट भी लिख सकते हैं, बिकॉज एक्सपोनेंट -10 मीटर इज़ इक्वल टू द 1 एंगस्ट्रॉम। सो हम यहाँ पे एक्सपोनेंट -10 की जगह एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। सो r इज इक्वल टू हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ गई है दैट इज़ r इज इक्वल टू n स्क्वायर 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ए नॉट, कैपिटल ए नॉट जो है दैट इज़ नोन एज एंगस्ट्रॉम, ये यूनिट है हमारे पास रेडियस की। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हमें किसी भी यू कैन से किसी भी एटम, वो एटम जो कि यूनिवेलेंट हो या जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हमें उसका रेडियस कैलकुलेट करना है, लेकिन ये जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये हाइड्रोजन एटम के लिए आ रही है, लेट मी टेल यू, यहाँ पे हमारे पास जो आ रही है, तो अगर हमारे पास रेडियस अगर हमें कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट का, तो यहाँ पर हम n की वैल्यू को चेंज करके, फॉर एग्जांपल अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट का चाहिए तो n इज इक्वल टू 1 होगा, तो हमारे पास वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगी। और अगर n इज इक्वल टू 2 होगा तो हमारे पास वैल्यू 2.116 एंगस्ट्रॉम आएगी, एंड सो ऑन फॉर द थर्ड ऑर्बिट, फॉर द फोर्थ ऑर्बिट, फॉर द फिफ्थ ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट का अगर हमें रेडियस कैलकुलेट करना होगा हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बहुत रेडियस की डेरिवेशन थी। नाउ हियर वी हैव एग्जांपल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए नॉट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है ए नॉट की वैल्यू, यहाँ पे इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ए नॉट इज इक्वल टू क्या है, 0.529, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 0.59 है जो कि रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज़ अ 0.529। अब ये हमारे पास किस तरह से आया है, आपको इस एग्जाम्पल में बताई गई हैं तमाम कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़। वैक्यूम परमिटिविटी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की दैट इज़ 8.85 एक्सपोनेंट -10, पाई की वैल्यू हमें गिवन है, इन ई की वैल्यू हमें गिवन है चार्ज की, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है, और मास की वैल्यू हमें गिवन है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूले के अंदर पुट करके, तो हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज़ द 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको ठीक कर लीजिएगा, दैट इज़ द 0.529 एंगस्ट्रॉम, जो कि अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। जैसे मैंने आपको बताया था, चाहे आपको थर्ड ऑर्बिट का चाहिए, चाहे फोर ऑर्बिट का चाहिए, किसी भी ऑर्बिट का चाहिए, आप वैल्यूज़ में पुट करें जो फार्मूला आपके पास गिवन है, ये वाला फार्मूला जो आपके पास गिवन है, इसमें आप वैल्यू को पुट करें। n की जगह आपने 3 लिख के फिर उसको स्क्वायर कर देना है, क्योंकि फार्मूले में हमें स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, जो करेक्शन है वो मैंने आपको बता दी है, वो करेक्शन कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। ओके, अब हमने कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। किस तरह से होगी हमारे पास डेरिवेशन।
The energy of an electron in an orbit is the sum of its potential energy and kinetic energy. आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है kinetic energy क्या होती है and potential energy क्या होती है. ओके तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है. वेयर एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट, यू नो वेरी वेल. एंड हमेशा हम किसके बारे में कहते हैं, ऑर्बिट के बारे में. ठीक है, नाउ ई एन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड प्लस हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है. ये वैल्यू जो हमारे पास है दैट इज़ फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अगर हम दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ जाती है. और सिंप्लीफाई करके, क्योंकि हमारे पास जेड ई के साथ यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 1. ठीक है स्टूडेंट्स, now the minus sign indicate that potential energy of electron decrease when it is brought from infinity to a point at a distance r from the nucleus. okay, infinity से जब इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ लेके आते हैं, इन्फिनिटी पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है. अब जब इन्फिनिटी से हम नीचे न्यूक्लियस की तरफ जब इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे उसका एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, तो जब ज़ीरो से हमारे पास वैल्यू नीचे की तरफ आती है तो वो क्या हो जाती है, ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाती है. ठीक है, तो हमारे पास एट इन्फिनिटी वैल्यू ज़ीरो होगी और जब हम ज़ीरो से भी नीचे लेके आएंगे, इन्फिनिटी से नीचे लेके आएंगे, न्यूक्लियस से करीब लेके आएंगे आर रेडियस तक, तो हमारे पास वो वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव में होगी. नाउ एज वी नो द कंपैरिजन ऑफ बोथ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हमने कंपैरिजन कब किया था, बाहर के रेडियस में. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो स्टूडेंट्स, अगर हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो हमने लास्ट डेरिवेशन में कंपेयर किया था, तो हमारे पास वैल्यू ये वाली आ गई थी, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर. नाउ मल्टीप्लाई इट बोथ साइड बाय हाफ. ठीक है, मल्टीप्लाई इट बाय हाफ 1/2 ऑन बोथ साइड, तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी और इस वैल्यू के साथ भी हमारे पास हाफ़ की वैल्यू आ जाएगी. तो इस तरह से हो जाएगा. अब जब ये हाफ़ की वैल्यू यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, और 2 और 4 जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा. नाउ इट इज़ द बिकम द इक्वेशन नंबर 2. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है. सॉरी, लेट मी शो यू. ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है. अब जो हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास ये आई है, इसको हम पुट कर देंगे इस जगह पर. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ मार्क करके शो कर रही हूँ कि हमारे पास जो है हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू जो आई है दैट इज़ द जेड स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. इसको हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. ठीक है, तो नाउ पुटिंग द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, टोटल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी. नाउ बाय टेकिंग द एलसीएम. ठीक है, अब जो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, इसमें हमने नीचे जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको कैलकुलेट करके हमने इसका एलसीएम लिया, और एलसीएम करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ये है, दैट इज़ अ माइनस जेड स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, बाय टेकिंग एलसीएम, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन अबव इक्वेशन. अब जो हमारे पास ये अबव इक्वेशन आई है, इसमें हमने आर की वैल्यू को पुट कर दिया. आर की वैल्यू, आर जो रेडियस हमने कैलकुलेट किया था उसको हमने यहाँ पर इस आर की जगह पे, ये जो आर है इसकी जगह पर हमने पूरी वैल्यू को पुट कर दिया. हमारे पास आर की वैल्यू क्या आई थी, इफ़ यू रिमेंबर, N2H2 एप्सिलॉन नॉट ओवर पाई एम जेड स्क्वायर. ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया. तो पुट करने के बाद हमारे पास जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस स्टेप में जो पाई एम जेड स्क्वायर है, पाई एम और जेड स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में है. जब हम इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेम वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी. यहाँ से हमारे पास लेट मी शो यू, यहाँ से हमारे पास पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी हमारे पास पाई कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास आई थिंक सिर्फ पाई ही कैंसिल होगा. ठीक है, दोनों तरफ से हमारे पास पाई कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा है, जेड स्क्वायर E4m. ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जेड स्क्वायर E4m हमारे पास रह गया था. नीचे हमारे पास 8 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्योंकि 2 हैं तो इसलिए स्क्वायर आ जाएगा,
एन स्क्वायर आ जाएगा और एच स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेप के अंदर हमारे पास सिर्फ पाई पाई कैंसिल हो गया है, ठीक है। नाउ फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1 एंड बाय टेकिंग आउट ऑल द कांस्टेंट फैक्टर, ओके अब अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। सो बाय टेकिंग आउट ऑल द कांस्टेंट फैक्टर, हमारे पास जो कांस्टेंट फैक्टर है उसको हमने बाहर की तरफ लिख लिया है और बाकी हमारे पास जो वेरिएबल है उसको हमने ब्रैकेट में छोड़ दिया है। तो तमाम हमारे पास जो कांस्टेंट है जो यहाँ पे हमें शो किया गया है उसके लिए हमने एक ही कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी है, दैट इज़ द के, ठीक है। और जो हमारे पास एन स्क्वायर है जो कि हमारे पास वेरिएबल है उसको हमने यहाँ नीचे लिख लिया है। तो इन तमाम कांस्टेंट फैक्टर को हमने एक कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो कुछ ये बन जाती है, ठीक है। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, हमने तमाम कांस्टेंट की वैल्यू को जब कैलकुलेट किया, मतलब मास, हमने मास की वैल्यू रखी, एनर्जी रखी, एप्सिलॉन वैक्यूम परमिटिविटी की वैल्यू रखी, प्लैंक्स कांस्टेंट रखा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है दैट इज़ द -2.178 एक्सपोनेंट माइनस 18। और हमारे पास ये वैल्यू जो है दैट इज़ द वेरिएबल, हमारे पास 1 ओवर ऑर्बिट है और ये हमारे पास वैल्यू आ रही है जूल में, ठीक है, वेयर के इज़ इक्वल टू 2.178। एंड अगर हमने इसी वैल्यू को जूल में जो हमारे पास वैल्यू, उसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो के की वैल्यू आ रही है, ये वाली जो वैल्यू आ रही है, अगर हमने इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना होगा तो पहले जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना होगा एंड पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर। तो इस तरह से हमारे पास जो जूल की वैल्यू है वो किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आंसर हमें जूल में बताएं तो फिर आप ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे और साथ एन स्क्वायर आप मालूम करेंगे। और अगर आपसे कहा जाएगा कि कैलकुलेट द वैल्यू इन किलो जूल पर मोल, तो फिर आप इस कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करके आप आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपने यूनिट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। अब अगर आपसे E2 का कहा जाएगा, E2 का मतलब ये सेकेंड ऑर्बिट के एनर्जी कहा जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -328 समथिंग। और अगर E3 का कहा जाएगा तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको अगर हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट का अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करने को कहा जाएगा तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर ऑर्बिट लिख लेना है। अगर 1 होगा तो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करनी है, सेम हियर यहाँ पर, ठीक है। अगर 1 ऑर्बिट होगा तो 1 लिख लेंगे, अगर सेकंड ऑर्बिट होगा कि सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट कर लें तो आप यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको नेक्स्ट इस स्लाइड में आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर आपको किस तरह से कैलकुलेट किया है एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट। आपके पास आपने यहाँ पे 2 की वैल्यू रखी तो आपके पास ये आंसर आ गया, 3 की वैल्यू रखी है तो आपके पास ये आ गया, 4, 5 एंड सो ऑन। The first energy level where n is equal to 1 is known as the ground state of the hydrogen atom. All other energy level are known as excited state. You know very well about this कि हमारे पास जो लोअर एनर्जी लेवल या फर्स्ट एनर्जी लेवल जिसमें हाइड्रोजन का एटम इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है कंटिन्यूसली, तो उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और इसके अलावा जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं दैट इज़ इन द एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कब जाते हैं, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो लोअर एनर्जी लेवल से जब बाहर से रेडिएशंस हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे जंप करते हैं। एनीवेज इस तरह से हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल फर्स्ट एंड सेकेंड। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे कहा जाए आप एनर्जी कैलकुलेट करें 2 ऑर्बिट्स का, ठीक है, 2 ऑर्बिट्स की, मतलब आप कह सकते हैं कि एनर्जी आप n1 की कैलकुलेट करें। लेट मी शो यू कि अगर आपसे कहा जाए E1 आपके पास एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट की, E2 एनर्जी आपके पास है सेकेंड ऑर्बिट की। द फर्स्ट एनर्जी लेवल इज n इज इक्वल टू 1 दैट इज़ नोन एज ग्राउंड स्टेट एंड ऑल अदर नोन एज एक्साइटेड स्टेट। तो अगर आपसे कहा जाए कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करें तो फिर आप किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, आपने एनर्जी की वैल्यू को यहाँ रखा, सिर्फ आपने चेंज क्या किया है कि यहाँ पर आपके पास ये एनर्जी की वैल्यू है, आपने यहाँ n के साथ नीचे छोटा सा 2 लिख लिया है। एंड फॉर द फर्स्ट एनर्जी लेवल आपने यहाँ पे 1, लेट मी शो यू, यहाँ पे जब आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो ये n स्क्वायर के साथ आप 1 लिखेंगे, और जब सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो n स्क्वायर के साथ आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो सेम आपको यहाँ पे इस तरह से आपने यहाँ पे शो किया है,
सिर्फ ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि आपके पास आपको पता है कि नंबर ऑफ़ ऑर्बिट जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, बाकी तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट होती हैं। तो आपने इस तरह से E2 में से E1 को जब माइनस कर रहे हैं तो E2 में से E1 को माइनस करके आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। इसको मज़ीद जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास ये वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो नेगेटिव में है, ठीक है। सेम आपको पता है कि ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव में है। अब आप लेट मी शो यू अगेन, आपके पास इसको थोड़ा सा, आपके पास को पता है एनर्जी की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की थी वो माइनस में थी। सेम आपके पास यहाँ पे भी एनर्जी की वैल्यू जो है वो माइनस में है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो N1 ऑर्बिट वाली जो एनर्जी है वो हमारे पास प्लस हो जाएगी, और N2 ऑर्बिट वाली ये वाली जो आपके पास एनर्जी है ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। और ये आपके पास जो E2 वाली जो वैल्यू है ये क्या होगी आपके पास, ये नेगेटिव में होगी। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये वाली वैल्यू को यहाँ पर ले आए हैं, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हमारे पास यहाँ आ गया, और ये जो हमारे पास नेगेटिव साइन वाली वैल्यू है इसको हम इस तरफ ले आए हैं। तो इस तरह से हमने E2 और E1 की वैल्यू को रीअरेंज कर दिया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा साइन चेंज होके N2 की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, और N1 की और N2 की वैल्यू हमारे पास इस तरह से यहाँ आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या किया, कांस्टेंट की वैल्यू को सेम उसी तरह हमने कांस्टेंट की वैल्यूज़ तमाम को इस तरफ रख लिया। जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स कौन से होते हैं, नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स, उनको हमने एक तरफ रख लिया। और जब हमने तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज़, ये जो हमारे पास जो कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की तो हमारे पास वो आ रही है, दैट इज़ द 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18 जूल, ठीक है। और हमारे पास ये जो है हमारे पास ये आपके पास वेरिएबल है, ठीक है। अगर आपको कहा जाएगा कि एनर्जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करें फॉर द टू ऑर्बिट्स, ऑर्बिट 2 एंड ऑर्बिट 1, तो आप यहाँ पर ऑर्बिट 2 की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ आप ऑर्बिट 1 की वैल्यू लिखेंगे, कांस्टेंट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप इस तरह से किसी भी दो एनर्जी लेवल के दरमियान डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। आपने जब भी आपसे कहा जाएगा कि दो एनर्जी लेवल्स या दो ऑर्बिट्स के दरमियान की एनर्जी का डिफरेंस मालूम करना है तो आपने ये वाला फार्मूला पुट करना होगा। और अगर आपको सिंपल एनर्जी किसी ऑर्बिट की कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। नाउ कम टू द डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो उसमें हमारे पास डेरिवेशन के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी कि हमारे पास एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और जब हमने प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव किया था तो हमारे पास h आ गया था, h इज़ एक्चुअली द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो डेल्टा E इज इक्वल टू h म्यू, h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें पता है कि डेल्टा E की वैल्यू अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट की है, डेल्टा E की वैल्यू वो ये है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी अभी हमने कैलकुलेट किया वो ये है, और h म्यू की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पता है इसमें आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू जो थी वो ये है, और कांस्टेंट आपके पास थे कौन कौन सी, कांस्टेंट एक्सप्रेशन कौन सा है, वो ये है। आपने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर आ गई h, क्योंकि आपको कंसर्न किससे है, फ्रीक्वेंसी है, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ म्यू से शो किया जा रहा है, तो आपने फिर क्या किया, h की जो वैल्यू है उसको आपने इस तरफ लिख लिया, तो हमारे पास पहले h स्क्वायर था तो अब हमारे पास ये हो जाएगा h क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की एक फ्रीक्वेंसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है, और फ्रीक्वेंसी की जो हमारे पास यूनिट होती है वो हर्ट्स भी हो सकती है एंड साइकिल पर सेकंड भी होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं बॉहर की रेडियस, या यू कैन से कि हमारे पास जो रेडियस में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी हम इस तरह से फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द लास्ट डेरिवेशन इज़ द डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, इन तमाम की डेफिनेशन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दी थी और समझाया था, डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर। ओके, नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर जो हमारे पास है वो ये है, ठीक है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी इस यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर होती है। लेट मी शो यू अगेन कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर, और हमारे पास अगर हम वेव प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है
और ये कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, दैट इज़ एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, नाउ कम टू द पुटिंग द वैल्यू। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी, अभी जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर जो फ्रीक्वेंसी की, लेट मी शो यू, यहाँ पर अभी हमने जो लास्ट स्लाइड के अंदर फ्रीक्वेंसी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया था वो हमारे पास ये आया था, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अबव इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये एज इट इज़ हो गया। अब क्योंकि हमें सिर्फ कंसर्न है वेव नंबर से, तो इसलिए हमारे पास जो c है वो यहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास वेव नंबर रह जाएगा, और c भी हमारे पास कांस्टेंट है। और बाकी जो हमारे पास तमाम कांस्टेंट हैं, तो अगर हम इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, लेट मी शो यू अगेन, कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट हैं, ये जो तमाम कांस्टेंट हैं c इंक्लूडिंग c, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.09678 एक्सपोनेंट 7 पर मीटर। और इस तमाम कांस्टेंट के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ द r। r क्या है? दैट इज़ द रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने ये तमाम डेरिवेशन और ये r की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, इसलिए इसको रेडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमने अबव एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास ये जो वैल्यू है, हमने इसकी जगह पर r लिख लिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। बाकी तमाम वैल्यू एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। r की वैल्यू को हम पुट करते हैं, हमारे पास वेरिएबल ऑर्बिटल्स ये हैं, तो हम इस तरह से किसी भी दो ऑर्बिट्स के दरमियान वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ऑर्बिट 2 और ऑर्बिट 3 के अंदर वेव नंबर कैलकुलेट करें, तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है इसको याद करके आप दो ऑर्बिट्स के दरमियान वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द होमवर्क। होमवर्क स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ योर बुक। एग्जाम्पल 2.4, ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो कि सॉल्व आपकी बुक में हैं, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा से दोबारा से प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 2.4, 2.5 एंड 2.6। द फोर्थ क्वेश्चन दैट इज़ अ सेल्फ चेक। सेल्फ चेक है जिसमें आपको रेडियस कैलकुलेट करना होगा, एंड इसके अलावा आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, आपने सिंपल आपने एनर्जी और वेव नंबर की वैल्यू रखनी होगी, उसके ज़रिए आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। आपको दो क्वेश्चंस हैं सेल्फ चेक में जो कि आपने करना है। एंड इसके बाद आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको दो पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स करने हैं, और इन दोनों पार्ट्स के अंदर आपको जो कैलकुलेट करना है, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि जो आपके पास पहला वाला जो पार्ट 2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर है दैट इज़ 17, इसमें आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सिंपल, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, किलो जूल पर मोल में करें या जूल में करें, तो आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है थर्ड ऑर्बिट की। ठीक है, एंड सेकंड जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का, लेट मी शो यू, मैं इसकी बात कर रही हूँ, अभी मैंने आपको इसका बताया, अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना होगा, आपको बोहर इक्वेशन का रेडियस कैलकुलेट करना है, दो रेडियस 1 और रेडियस 2 कैलकुलेट करना होगा, और फिर उसके बाद आपने इन दोनों रेडियस का डिफरेंस और यू कैन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो रेडियस डेरिवेशन से आपके पास 0.529 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 से, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 से करेंगे, और उसके बाद आपने दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आज का लेक्चर थोड़ा सा डेरिवेशन के हवाले से थोड़ा सा आई एम श्योर कि थोड़ा बोरिंग लगा होगा आपको, बट आई एम श्योर कि आपको समझ भी आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आपने पूछना है, आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।